ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم جو ہے وہ پنو واکل تھانہ سکھر ڈسٹرکٹ کے ایس ایچ او سب انسپکٹر شکور لاکو کے ٹرانسفر کی اندرونی کہانی بیان کریں گے کہ کس نے جو ہے اپنی موت کو دعوت دیتے ہوئے، اپنی موت کو للکارتے ہوئے شکور لاکو کے خلاف کارروائی کرنے کی جرت کی، کیونکہ ان کے خلاف کارروائی کیے جانے سے جو ہے بہت بڑی بڑی جگہ سے جو ہے وہ شدید ترین قسم کے تحفظات ظاہر کیے جانے کی اطلاع ملی ہے، یہاں تک کہ خود صدر مملکت آصف علی زرداری کے پرنسپل سیکرٹری نے بھی جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا ہے اس ٹرانسفر پر۔ کیا شکور لاکو کی ٹرانسفر کیے بغیر گوٹکی میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن ممکن نہیں تھا، اور پولیس کی کارروائی کو خفیہ رکھنے کے لیے یا پھر ڈاکوں تک پولیس کی کارروائیوں سے متعلق اطلاعات نہ پہنچنے کی غرض سے ہی شکور لاکو کو راستے سے ہٹایا گیا، یا کہ یہ کوئی سیاسی معاملہ ہے؟ اس ٹرانسفر سے یقیناً جو ہے خود شکور لاکو اور ان کی سرپرستی کرنے والوں کی شکست ہوئی ہے، اور ان کے مخالفین کی جو ہے ایک طریقے سے جیت ہوئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پورا کا پورا آپریشن جو ہے گوٹکی کا اس وقت گوٹکی کے سابقہ ایس ایس پی حفیظ بگٹی کی گائیڈ لائن پر کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے شکارپور کا آپریشن جو ہے سابقہ شکارپور کے ایس ایس پی جو ہے ان کی ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ کے نتیجے میں مکمل کیا گیا، اور اسی طریقے سے اب گوٹکی کا آپریشن جو ہے خود لاڑکانہ کے ڈی آئی جی جو اس آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں ناصر آفتاب، وہ خود سابقہ ایس ایس پی گوٹکی حفیظ بگٹی کی رپورٹ کو ہی مشعل راہ بناتے ہوئے جو ہے وہ ڈاکوں کے خلاف آپریشن اس وقت کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلام سلام۔ میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ اس وقت آپ یہ اسکرین پر آرڈر کی کاپی دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں مسٹر شکور لاکو، پنو واکل تھانے کے ایس ایچ او، جنہیں جو ہے وہ لائن حاضر کر کے سی پی او کراچی میں رپورٹ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ پرویز چانڈیو جو ہے ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ان کے دستخط ہیں، اور یقیناً آئی جی کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس ٹرانسفر سے جو ہے خود جاوید عالم اوڈو سندھ پولیس کے نوزائیدہ آئی جی پر بھی جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے اس وقت ہوئے ہیں، سیاسی حلقوں کی جانب سے، بیوروکریسی کی جانب سے۔ یقیناً انہیں بھی جو ہے وہ تبدیل تک کرنے کی کہتے ہیں کہ دھمکیاں دی گئی ہیں، یہ ذرائع کہتے ہیں۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی اور پجارن جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق صورتحال بڑی گھمبیر ہو گئی ہے ایک سب انسپکٹر کے ٹرانسفر کو لے کر۔ اب جو اس کی اندرونی کہانی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس ٹرانسفر میں جو ہے خود سندھ کے ایک طاقتور ترین صوبائی وزیر علی حسن زرداری کا بڑا ہی کلیدی کردار ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ علی حسن زرداری نے ہی شیر یار شر، جو کہ مخالف ہیں خود شکور لاکو اور ان کے سرپرستوں کے، ان کی 1 to 1 ملاقات جو ہے وہ صدر مملکت سے کروائی۔ اس میں انہوں نے گلے کیے، شکوے کیے کہ وہ تحریک انصاف کے ایم پی اے تھے، اور تحریک انصاف کو اس شرط پر، اس یقین دہانی اور ان وعدوں پر انہوں نے چھوڑا تھا، پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی خود فریال تالپور صاحبہ کے بار بار کے رابطے پر کہ وہ انہیں پیپلز پارٹی میں جو ہے عہدہ دیں گے، انہیں ایم پی اے بنائیں گے، انہیں وزارت دیں گے، اور ان کے معاملات کو تحفظ بھی دیں گے، جو ان کی کوٹ کی کچے کے علاقے میں جو ان کی زمینیں ہیں۔ لیکن ہوا کیا، ان پر حملے ہوئے، ان کی زمینوں پر قبضے کیے گئے، اور ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا گیا محض پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے پر، اور انہیں الیکشن میں بھی جو ہے وہ دھاندلی سے ہروایا گیا۔ اس قسم کی انہوں نے
शिकायतें दोए तो इस पर जो है फिर आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत ने कहा तुम चाहते क्या हो। उसने कहा कि शकूर लाखों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो अभी भी उन पर हमला करने वाले डाकुओं को जो है वो अपने पास रखता है और उन्हें डर है कि उन्हीं डाकुओं के ज़रिए वो उन पर हमला करके उनकी ज़िंदगी का काम कहीं तमाम ना कर दे। जिस पर जो है फिर और वही डाकू जो है वो हाल ही में उनके बेटे की शादी की तकरीब में भी आए तो उन्होंने तस्वीरें तक जो है वो सदर मुमलिकत को दिखा दी, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिस पर फिर आसिफ अली जरदारी जो है बहुत ही मुश्तइल हुए हैं, गुस्से में आए और उन्होंने फौरी तौर पर सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह को हुक्म दिया कि इस पर एक्शन लिया जाए और सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, चाहे कोई भी जो है शकूर लाखों की पुष्ट पर क्यों ना हो, उन्हें निशाने इबरत बनाया जाए। जिसके बाद वज़ीर दाखिला को कहा गया, ज़िया लंजार को वज़ीर आला की तरफ से, और उसके बाद IG सिंध ज़्यादा ऑर्डर इस तरह से जो है काम तमाम कर दिया गया। खुद शकूर लाखों उन्हें जो है वो लाइन हाजिर करते, हालांकि अभी भी उन पर हल्का हाथ रखा गया है। जब भी कोई ट्रांसफ़र होता है इतने संगीन किस्म की इल्ज़ामात सदर मुमलिकत की तरफ से हैं तो उसके बावजूद उनको सस्पेंड तक नहीं किया गया है। उन्हें तो डिसमिस होना चाहिए था, उनके खिलाफ तो मुकदमा होना चाहिए, लेकिन उन पर फिर भी जो है वो हल्का हाथ रखते हुए सिर्फ उन्हें ट्रांसफ़र किया है CPO कराची में सक्कर से। अब कहा यह जा रहा है कि इसमें खुद जो नासिर आफ्ताब की भी रिपोर्ट थी कि उनकी तमाम सीक्रेसी जो है वो आउट हो रही है, वो जो भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं डाकुओं को जो है वो पेश की इत्ला मिल जाती है कि आखिर डाकुओं को कौन इत्ला दे रहा है, कौन पुलिस में उनके मुखबर हैं, उनके जासूस हैं जो उनको पल पल की खबरें दे रहे हैं। जहाँ पुलिस कार्रवाई करती है डाकू पहले ही वहाँ से निकल जाते हैं असाज व सामान के साथ। तो वो इसलिए भी जो है वो शकूर लाखों को जो है वहाँ से तब्दील किए बगैर जो है ये ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच पा रहा था, इसलिए उन्हें वहाँ से तब्दील करना पड़ा। अब दूसरे ग्रुप की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि चूँकि शेर यार शर ने जो है बहुत बड़ी अपनी कीमती ज़मीन जो ओबाड़ो है पंजाब की सरहद के करीब, वो ज़मीन जो है वो तोहफ़तन जो है वो अली हसन जरदारी को दी थी उनके 2 शुगर मिलों के लिए। इसलिए जो है वो अली हसन जरदारी उन पर मेहरबान हैं और उनकी उन्होंने 1-to-1 मुलाकात सदर मुमलिकत से करी ताकि वो उनके गिले शिकवे सुने और उनके साथ अजाला करें। इसी पर जो है वो अब जाके शकूर लाखों को जो है वहाँ से तब्दील कर दिया गया। लेकिन शकूर लाखों इतना अहम तरीन कारिंदा है, इतना अहम तरीन मोहरा है खुद धारेजो कबीले का कि उनकी पुष्प पर जहाँ एक तरफ खुद सैफुल्ला धारेजो खड़े नज़र आते हैं तो दूसरी जानब जो है वो तारिक धारेजो, तीसरी तरफ जो है खुद साबिका सेक्रेटरी स्टेट और मौजूदा सदर मुमलिकत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर इनामुल्लाह धारेजो। अंदाज़ा लगाएं कि ये गिरफ्तार थे और गिरफ्तारी के दौरान भी जो है वो टेलीफोनिक रब्ता हुआ था खुद DIG हैदराबाद का, और उस वक्त भी जो है वो हफीज़ बुगटी के ख़िलाफ़ बहुत कुछ कहा गया था। और उस वक्त के DIG सक्खर जो है पर पीर मोहम्मद शाह वो भी किस तरीके से जो है मुबैना तौर पर उस वक्त सहूलतकारी के मुर्तकिब हुए थे, और ख़ुद उस वक्त के IG ग़ुलाम नबी मेमन ने भी जो है वो हफीज़ बुगटी के ख़िलाफ़ चले और सारी के सारी कार्रवाइयाँ जो है वो उनके ख़िलाफ़ करते रहे। बाद में बैलेंस करने के लिए पीर मोहम्मद शाह को भी तब्दील किया और उनको भी तब्दील, हालांकि खुद वो उस वक्त वो बेगुनाह थे, वो एक ऑपरेशन कर रहे थे वफाकी हुकूमत के और खुद सिंध हुकूमत के मशवरे पर के शर कबीले के 250 डाकुओं को जो है उन्होंने उनको सरेंडर कराना था, उनसे हथियार फेंकवाने थे और उनको जो है वो आम माफ़ी का ऐलान करना, जो बाद में खुद सूबाई वज़ीर दाखिला ने वही सब कुछ किया जो पहले हफीज़ बुगटी करने जा रहे थे। लेकिन उन्हें उस वक्त जो है निशान इबरत बना दिया गया था क्योंकि उन्होंने जो है ख़ुद शकूर लाखों और डाकुओं के रवाबित को जो है बम शवाहिद के उन्होंने पकड़ लिया था। टेलीफोन कॉलें रिकॉर्ड हो चुकी थी, डाकुओं के राब्ते इनके साथ थे और वही सब कुछ उनके लिए बाद में उनकी तब्दीली और उनकी बर्बादी और उनके ख़िलाफ़ सारी कार्रवाई हो गई। हालांकि उन्होंने सही काम किया था। अब जब जाके ये
लाइन हाजिर हुए तो ये अगर उस वक्त हो जाते तो कुछ भी न होता, लेकिन उन्होंने तो रंगे हाथों गिरफ्तार करके उनका मोबाइल फ़ोन तक कब्जे में ले लिया था, जिसमें सारा का सारा रिकॉर्ड था डाकुओं से उनके मेल जोल का, डाकुओं से उनके राब्ते का, उनकी रिकॉर्ड, उनकी आवाज़ें, सब कुछ उसमें मौजूद थी। लेकिन जिसका बाप जिंदा हो तो उसको हरामी कौन कहे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। यही सब कुछ हुआ। वो ये कहते कहते रह गए कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर देते हैं तो चर्चा तक नहीं होता। यानी उनका इशारा जो है खुद पीर मोहम्मद शाह की तरफ था, और पीर मोहम्मद शाह के भी शवाहिद जो है वो उस वक्त सामने आ गए थे कि खुद उसी ग्रोह में शामिल एक डाकू जो है वो उनका इन्फॉर्मर था। ये इंकशाफात किए थे खुद हफीज़ बुगटी ने, और जो कमेटी उस वक्त बनी थी, कमेटी ने जो इंक्वायरी की थी, कमेटी की इंक्वायरी की रिपोर्ट में भी जो है ये सारी बातें उस वक्त सामने आई थी। लेकिन मैंने कहा ना कि जिसका बाप जिंदा हो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करता। देर आए दुरुस्त है, लेकिन अब जाके जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाइयों की शुरुआत कर दी गई, और अब उनके जो सरपरस्त हैं वो भी यकीनन इसके जद में आए बगैर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि मामला जो है वो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से उठाया गया है। अब इसमें जो है एक तरीके से खुद अली हसन जरदारी जो है सूबाई वजीर, उन्होंने भी अपने आप को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि बातें तो नहीं छुपी रहती। सबको पता चल गया मुखालिफिन को कि खुद शेर यार शर की इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत या उनका इतना असर रसूख नहीं है कि वो एकदम सदर मुमलिक तक पहुंच सके। यकीनन सीढ़ी का रोल जो है वो खुद अली हसन जरदारी ने अदा किया, तो लिहाजा अब वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो अली हसन जरदारी के भी खिलाफ हो गया है, और अब आगे चलकर जो है वो उन्हें भी जो है वो इंतकाम का निशाना जो है वो किसी न किसी तरीके से बना सकते हैं। ये कहना है खुद पुजारन जी का। पुजारन जी का ये कहना है कि बहुत ही गम व गुस्सा पाया जाता है, और खुद सिंध पुलिस के आईजी जाहिद आलम ओडो, जिनके अभी आर्डर की स्याही भी खुश्क नहीं हो पाई थी, वो भी जो है वो इस कार्रवाई की वजह से जो है मुश्किल में आ गए हैं। उन्हें भी जो है बिलवास्ता या बराह रास्त जो है वो धमकियां दिए जाने की इत्तलाआत मौसूल हो रही है, और ख़ुद नासिर आफ्ताब जो कि पोस्टिंग के चक्कर में या एडिशनल आईजी कराची बनने के चक्कर में या फिर ख़ुद बिलावल जरदारी खुशनुदी हासिल करने के चक्कर में ये सब कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, वो भी इस ग्रुप की जो है वो कहर को, गैज़ व गज़ब को जो है एक तरीके से ललकार रहे हैं, और यकीनन इस ग्रुप के गैज़ व गज़ब से वो अपने आप को नहीं बचा पाएंगे अगर ये ऑपरेशन उनका कामयाब हो जाता है, और उसके नतीजे में जो है शकूर लाको के खिलाफ मजीद कार्रवाई होती है। शकूर लाको गिरफ्तार रहे, जेल गए, 169 की राह में दीवार बने रहे खुद यही शकूर लाको। बाद में जो है वो उन्होंने कहते हैं कि जज ही को ख़रीद लिया और उनकी बैल हो गई। ज़मानत होते ही अभी ज़मानत का आर्डर की स्याही नहीं खुश हुई थी कि आईजी ग़ुलाम नबी मेमन से उन्होंने डंडे के ज़ोर पर जो है पन्नू अकल थाने का उन्हें SHO लगा दिया। हालांकि हसास इदारों की रिपोर्टें उनके ख़िलाफ़ थी, लेकिन उस वक्त के आईजी ने जो है वो अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए जो है वो उनकी पोस्टिंग की, उनका साथ दिया। ये कहना है पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद है। नाज़रीन, ये बहुत ही अहम प्रोग्राम था, बहुत ही अहम मालूमात थी, लेकिन अब इसके बाद जो है ख़ुद शकूर लाको की भी ज़िंदगी जो है मज़ीद कहते हैं कि ख़तरे में पड़ गई है। ये कहना है ख़ुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। देखना ये कि शकूर लाको कितने रोज़ तक जो है कराची में लाइन हाजिर रहते हैं, और अमली तौर पर वो वहाँ रिपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो क्या परवेज़ चांडियो उसकी रिपोर्ट भिजवाएंगे कि इन्होंने अहकामात की तामील नहीं की, या कि मामला गोल हो जाएगा। अब इसकी पैरवी या इसका पीछा करना, परसू करना जो है वो शकूर लाको का पीछा करना, इस मामले का पीछा करना जो है खुद शेर यार शर की जिम्मेवारी है, और सबसे बढ़कर जो है अली हसन जरदारी की, क्योंकि उन्होंने एक पंगा तो ले लिया, लेकिन अब इस पंगे को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना भी उनकी जिम्मेवारी में शामिल है। देखना यह कि ये मामला किस तरफ बैठता है, ऊंट किस तरफ करवट लेता है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर किसी को हमारी इन इत्तलाआत पर कोई एतराज़ हो,
کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تحفظات ہیں. میری یہ اطلاعات جو ہے وہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی. یہ صرف اور صرف جو ہے ادھر ادھر اور کیا سارائیوں پر مبنی. تو وہ ان کے پاس کوئی معلومات ہو تو ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. میرے رابطے کا نمبر ہے 4168573283. ہم آپ کے موقف کو بھی من و عن اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.